So till date we have been able to cover some aspects of cholinergic neurotransmission. जैसा आप सब जानते हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि cholinergic neurotransmission क्या है, the component of autonomic nervous system neurotransmission, which is mediated principally by the neurotransmitter acetylcholine, we say it as cholinergic transmission. And we know that what are the most important cholinergic sites in the body? They are either parasympathetic neuroeffector junctions or autonomic ganglia, or the adrenal medulla, somatic myoneural junctions, as well as certain regions in the central nervous system. Well, on these sites, the principal neurotransmitter is acetylcholine, and these are the sites for cholinergic neurotransmission. Okay. And we have also discussed the synthesis, release, and catabolism of cholinergic neurotransmitter acetylcholine. So, how just have a brief review how acetylcholine is synthesized. We all know that acetylcholine is synthesized from condensation of acetic acid and the choline, and the enzyme responsible for condensation of these two is choline acetyltransferase or choline acetylase. So there is a transfer of acetyl group over the choline, and this is one-step reaction, and the product formed is the neurotransmitter choline. And we have also discussed that hemicholine. Are you getting my voice, Vipin and Shruti? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have discussed that there is one compound, hemicholine. What it does that it blocks the synthesis of acetylcholine. How? It competitively blocks choline uptake by the neurons. We know that choline is a component of vitamin B complex, and this choline molecule is not synthesized in the animal body. Rather, it is obtained from the food source, and this availability of choline inside the neuron is the limiting factor in synthesis of acetylcholine. जितने भी कोलिन मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे उतना ही एसिटाइल कोलिन बनेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ कोलिन जो है ये लिमिटिंग फैक्टर है, और हमारे न्यूरोनल सेल्स या हमारे बॉडी का कोई भी सेल कोलिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है. नाउ दिस कोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, एंड ये हम फूड में जो हमारा कोलिन आ रहा है, जो हमारे ब्लड में जो अवेलेबल है, उससे वो टेकअप करेगा हमारे न्यूरोनल सेल्स. तो न्यूरोनल सेल्स में जितना कोलिन अवेलेबल होगा उतना ही एसिटाइल कोलिन सिंथेसाइज होगा. So how choline is made available into the neuron? It is actively taken up by the neuronal cells, and now this when this uptake is there, there is some transporter over the neuronal cell membrane, and this transporter transports or actively takes up this choline. And there is one blocker of this transporter. The name of blocker is hemicholine. So it will block the influx or the uptake of choline by the neurons. So in that way, we can say that hemicholine is synthesis blocker because it is preventing the intracellular availability of choline by the neuron cells. Okay, समझ में आ रहा है? तो इसलिए कोलिन को हम सिंथेसिस ब्लॉकर बोल रहे हैं. विपिन, श्रुति, आप लोग को अपना म्यूट करने की जरूरत नहीं है. श्रुति, अनम्यूट कर लो दोनों. Yes, sir. हाँ, मतलब एक बार में मैं बोलूं या आप लोग बोलें, बस इतना ही है. म्यूट बहुत ज्यादा लोग हो तब वो इशू है, और जहां पे भी अगर समझने में दिक्कत हो आप इमीडिएटली मेरे को रोकेंगे. ठीक है? तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. नाउ स्टोरेज, एक बार जो एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज हो जाए तो हमने बताया था कि ये इमीडिएटली स्टोरेज वेसिकल्स या सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, और वो सिनेप्टिक वेसिकल्स धीरे धीरे जो है वो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट होके जाता है. ये जो स्टोरेज वेसिकल्स हैं, यहाँ पे स्टोरेज वेसिकल में ये एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्ट होगा. जैसे सेल साइटोप्लाज्म में, न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में सिंथेसिस के बाद ये स्टोरेज वेसिकल में जाएगा. तो स्टोरेज वेसिकल पे भी, वेसिकुलर मेम्ब्रेन पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर होंगे जो एसिटाइलकोलिन को इंट्रावेसिकुलर एंट्री प्रोवाइड करेगा. तो एक कंपाउंड है वेजामिकॉल. ये वेजामिकॉल कंपाउंड जो है वो
इस स्टोरेज वेसिकल पे जो ट्रांसपोर्टर है उसको कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है। तो इससे क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंट्री नहीं होगा, सेल्स के अंदर वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और उनका स्टोरेज नहीं होगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम बेजामिकॉल जो है वो स्टोरेज ब्लॉकर है। एक बार अगर स्टोर हो जाता है तो फिर इनका रिलीज होना चाहिए। रिलीज क्या है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल सेल नर्व टर्मिनल के पास आएगा तो नाउ देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, और कैल्शियम आयंस का जैसे ही इन्फ्लक्स होता है, यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देखिए कि नॉर्मली ये जो हेमिकोलिनियम का यहाँ पे देख रहे हो कि हेमिकोलिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कोलिन का जो ट्रांसपोर्ट है इसको ब्लॉक कर रहा है। फिर क्या है कि कैल्शियम मीडिएटेड जो एक्सोसाइटोसिस है उसको जो है ये कुछ एक सर्टेन टॉक्सिन्स है जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन है, इसके इस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को ब्लॉक करता है। अब ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस जो है, जैसे है कि ये जो स्टोरेज वेसिकल है ये नर्व टर्मिनल के पेरिफेरी में मूव करेगा। तो मूव करने के लिए बहुत सारे इवेंट स्टेप्स होते हैं। पहले होता है मूविंग टू एक्टिव जोन, ये जो एक्टिव जोन है इसकी तरफ मूव करेगा, फिर डॉकिंग होगा, फिर प्राइमिंग होगा, फिर इस मेम्ब्रेन के साथ ये वाला मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा, उसको फ्यूजन बोलेंगे। एक बार फ्यूज हो गया तो एक्सोसाइटोसिस होगा। ये सारे इवेंट्स को जो है कुछ एक टॉक्सिन्स जो है वो ब्लॉक करते हैं। वो कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं? तो दो टॉक्सिन इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स हैं, एक है बोटुलिनम टॉक्सिन है, एक है ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो रिलीज को इनहिबिट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है मेरा कर्सर, माउस का पॉइंटर? हाँ, तो ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है इस रिलीज में जो मैकेनिज्म्स हैं, कुछ एक प्रोटीन्स हैं जैसे स्नैप 25 प्रोटीन है, मंक 18 प्रोटीन है, सिंटैक्सिन 1 है, ये सारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो इस वेसिकल को इस मेम्ब्रेन से फ्यूज होने में हेल्प करते हैं। और ये सारे प्रोटीन्स अगर ये क्या करेगा, ये डॉकिंग, प्राइमिंग, फ्यूजन इन स्टेप्स को मीडिएट करता है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो इसका कंटेंट्स बाहर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो एसिटाइलकोलिन का रिलीज ब्लॉकर है, रिलीज नहीं होने देगा। जबकि एक सेकंड कंपाउंड यहाँ ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन है। ये ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन क्या करता है कि ये एक नॉर्मली एक टाइप का स्पाइडर है, ये ब्लैक विडो स्पाइडर, और ये अगर किसी को काट ले तो उसमें जितना भी स्टोर्ड एसिटाइलकोलिन है सारा का सारा रिलीज हो जाएगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, स्टोरेज जो वेसिकल है वो खाली हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई न्यूरोट्रांसमिशन होना है तो वेसिकल तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो उससे डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट्स कुछ है नहीं। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये भी रिलीज को ब्लॉक कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो भी स्टोरेज में कंटेंट्स है पहले ये खर्च कर चुका है। तो ये ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन इनडायरेक्टली जो है वो रिलीज को ब्लॉक करता है। हाउ? बाय इंड्यूसिंग मैसिव रिलीज एंड डिप्लीशन। तो ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एसिटाइलकोलिन पे क्या एक्शन है, क्या करता है, तो आप एक दो लाइन में लिख पाएंगे? श्रुति एंड विपिन? यस, ओके, तो ये सारा इतना तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। और एक बार रिलीज हो जाए तो ये एसिटाइलकोलिन अपने पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे या न्यूरो इफेक्टर जंक्शंस पे इसके कंसर्न रिसेप्टर्स होते हैं। इसके दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, एक रिसेप्टर को हम मस्कर्निक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बोलते हैं और दूसरा को निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, और फिर पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में जो चेंजेस होंगे और कंसर्न टिश्यू का जो है वो फंक्शन एक्सप्लोर होगा। फिर इनमें हम देखें कि एक बार जैसे ही वो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन को रिसेप्टर्स को टच करता है तो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे जैसे यहाँ फोटोग्राफ में दिख रहा है कि कुछ एंजाइम्स होता है आसपास में। पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। उस एंजाइम का नाम है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज।
तो एस्टाइल कोलिन स्ट्रेन क्या करेगा, एस्टाइल कोलिन को एक मॉलिक्यूल वाटर को यूज करके हाइड्रोलाइज कर देगा, फिर से वापस एसिटिक एसिड एंड कोलिन। और ये जो कोलिन है, यहाँ जो कोलिन डिस्ट्रॉय होके आएगा, ये कोलिन फिर वापस सेल इसको टेकअप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई क्योंकि फिर उसको अगले स्टाइल कोलिन मॉलिक्यूल को सिंथेसिस में यूज हो सके। इस तरीके से ये जो कोलिन है इसका रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकिल होता है, ये वेस्ट नहीं होता है बॉडी में। ठीक है। और एक फॉल्स एंजाइम है, एक एंजाइम, ये तो एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है जो एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। एक हमारे बॉडी में एक स्यूडो कोलिन स्ट्रेज है। इस एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज को हम ट्रू कोलिन स्ट्रेज बोलते हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से टिपिकली एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन हमारे बॉडी के ब्लड में, लिवर में और अदर सेल्स में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज, जिसको हम स्यूडो कोलिन स्ट्रेज या फॉल्स कोलिन स्ट्रेज बोलते हैं। ये भी जो है एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर सकता है, लेकिन जो ब्रेक डाउन का स्पीड है वो स्लो है इसके कंपैरिजन में। तो अब देखें कि ये एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज और ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज में क्या डिफरेंसेस है। तो एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज को हम ट्रू कोलिन स्ट्रेज बोलते हैं। ट्रू कोलिन स्ट्रेज क्यों बोलते हैं श्रुति? Why एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज इज कॉल्ड ट्रू कोलिन स्ट्रेज? सर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है। नहीं, ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज भी ब्रेक डाउन करता है, लेकिन उसको फॉल्स कोलिन स्ट्रेज ये फास्ट है, ये फास्ट है। yes. और वो स्लो है। हाँ, इनका एस्टाइल कोलिन का जो ब्रेक डाउन नॉर्मली अगर जैसे ही न्यूरोट्रांसमिशन होता है, इंस्टेंटेनियसली विद इन माइक्रो सेकेंड्स उसका जो है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड के हजारवें हिस्से माइक्रो सेकंड्स में, मिली टू माइक्रो सेकंड्स में वो उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है। और अगर ये ब्रेक डाउन करने में कोई 1-2 सेकंड का टाइम लगा है तो काम खराब होगा। न्यूरोट्रांसमिशन आपको जैसे ही कोई अगर प्रिक करे तो प्रिक का फीलिंग अपने को इमीडिएटली होना चाहिए, और जैसे ही वो प्रिक की फीलिंग हो जाए वो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय होना चाहिए, अदरवाइज सेम फीलिंग लंबे समय तक मेंटेन होगा। तो जो टिपिकल न्यूरोट्रांसमिशन प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस है एंड वेरी फास्ट है, और वही ट्रू कोलिन स्ट्रेज होगा जो एस्टाइल कोलिन को इंस्टेंटेनियसली एट वेरी फास्ट रेट ब्रेक डाउन करे। और इस काम को सिर्फ एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम परफेक्टली कर सकता है। ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज उतने अच्छे से नहीं कर पाता, ये स्लो है। तो इसका देखो एस्टाइल कोलिन स्ट्रेज का हाइड्रोलिसिस जो है वेरी फास्ट है, माइक्रो सेकंड्स में, ये स्लो है, एक कुछ सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स लगाता है। और फिर कुछ कंपैरिजन है दोनों एंजाइम्स के बीच में कि कुछ अदर ड्रग कंपाउंड्स है, जैसे मेथाकोलिन है, बेंजोइल कोलिन है, इनको कौन हाइड्रोलाइज करता है, क्या है, उनके डिफरेंसेस है। 1-2 क्लास में आगे हम पैरासिम्पथोमाइमेटिक एजेंट्स पढ़ेंगे तो इनको आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखें। अब हमें इस क्लास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एस्टाइल कोलिन एक बार रिलीज भी हो जाता है तो ये सारा प्रोसेस सिंथेसिस हुआ, स्टोरेज हुआ, रिलीज हुआ, फिर यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? वाई? पर्पस है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर्स 2 पड़े हुए हैं, इनको एक्टिवेट करना। जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो, जब तक किसी रूम का लॉक ओपन नहीं हो, आप उसके अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये रिसेप्टर्स जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या जो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पे जो इफेक्टेड टिश्यू है, अगर वो मान लो कार्डियक सेल है, तो हार्ट के सेल में अगर हम दौड़ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम रन कर रहे हैं, तो हमारा उस समय एडर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है और हमारा जो है वो हार्ट का स्पीड बढ़ रहा है और हम फास्ट स्पीड पे हमारा हार्ट बीट हो रहा है। और जब रुक गए तो हार्ट बीट रुकना चाहिए, तो या हम डीप स्लीप में है, रात में सोए हुए हैं, तो हार्ट का रेट बहुत स्लो हो रहा है। तो जो निगेट करने का या उसको रोकने वाला जो काम है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमिशन, वहां पे जो एस्टाइल कोलिन है वो उन रिसेप्टर्स को इस टाइप से एक्टिवेट करेगा कि हार्ट का स्पीड स्लो हो। तो कहने का मतलब जो भी फंक्शंस मीडिएट हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू हो रहे हैं। अब उन रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखें तो एस्टाइल कोलिन के 2 इंपॉर्टेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है उनके रिसेप्टर्स का नाम? एक है
नाम दिया हुआ है मस्कर्निक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब देखा गया कि बॉडी में एसिटाइल कोलिन के जितने रिसेप्टर्स हैं सबसे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, एक्टिवेट करता है। तो फिर पहले तो लोगों का थॉट था कि नहीं एसिटाइल कोलिन के एक ही टाइप के रिसेप्टर्स हैं, बाद में देखे बॉडी में कहाँ कहाँ रिसेप्टर्स हैं। और जब हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का साइंस इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, तो जब प्रोटीन्स की क्लोनिंग करने लगे और रिसेप्टर्स की क्लोनिंग करने लगे तो देखा कि क्लोनिंग करने के बाद ये सारे एक टाइप के नहीं है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली सब एक जैसे नहीं है। तो देखा कि दो इंपॉर्टेंट टाइप के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस था। अब उसको प्रूफ कैसे करें कि भाई दो अलग अलग है और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो फिर बहुत सारे कंपाउंड्स को टेस्ट किया, उसमें एक कंपाउंड जो है बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, और उसमें एक कंपाउंड था मस्करीन, एक मशरूम प्लांट है अमानिटा मस्कैरिया। ठीक है, ये पॉइजनस मशरूम है, एडिबल नहीं है, सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये हाईली पॉइजनस मशरूम है अमानिटा मस्कैरिया। और इस मशरूम प्लांट में जो एक इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड है मस्करीन, तो देखा कि इसको आइसोलेट करके जब इंजेक्ट करते हैं तो सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होते हैं, कुछ एक सर्टेन टाइप के कोलिनर्जिक रिसेप्टर ही एक्टिवेट होते हैं सारे के सारे। तो उन सारे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो मस्करीन के से एक्टिवेट होते थे, उनका नाम दे दिया मस्कर्निक रिसेप्टर। मतलब वो सारे लोग जो लेफ्टिस्ट हैं, एक सर्टेन वामपंथी सोच रखते हैं, उनको हम लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं। उसी तरीके से ये सारे के सारे जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो मस्करीन से एक्टिवेट हो रहे हैं, उनका नाम दिया मस्कर्निक रिसेप्टर्स। सिमिलरली एक दूसरा टेस्ट कंपाउंड था निकोटीन। आप निकोटीन के बारे में जान रहे हैं, एक प्लांट है निकोटियाना टबैकम, या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें निकोटीन होता है। तो निकोटीन को इंजेक्ट करने के बाद देखा कि जो मस्कर्निक रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला कोलिनर्जिक रिसेप्टर है जिससे बाकी और दूसरे एक्टिवेट नहीं हो रहे थे, वो निकोटीन से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इनका नाम दे दिया कि ये अलग टाइप का रिसेप्टर है, इसको निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोल दिया। तो अब तक आ गया कि भाई कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक जैसा नहीं है, उसमें दो टाइप के रिसेप्टर्स हैं, एक का नाम दिया कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एक का मस्कर्निक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और दूसरा का नाम दिया निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है कि लोगों ने देखा कि फिर लोगों की एक क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मस्कर्निक रिसेप्टर में भी कोई सब टाइप है क्या, सारे के सारे मस्कर्निक रिसेप्टर एक जैसे हैं या कोई डिफरेंसेस है। तो एक बार जब कोई कुछ नया निकल जाता है तो सारा, अब ये जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है जितने भी अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी है, सारे के सारे अपने लोग लग गए कि भाई ये कैसे दो टाइप का रिसेप्टर पता चला था विपिन, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में दो टाइप का रिसेप्टर से पता चला लोगों को। तो फिर चौधरी बताओ, एक सेंस ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में दो सब टाइप्स हैं, कैसे लोगों को पता चला? जो टेक्निक है वो है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने कि ये प्रोटीनस नेचर के हैं। हम प्रोटीन्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं बाय पीसीआर, हम उनको क्लोन कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब कोई एक बैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया को आप पहचान नहीं सकते हो कि वो स्टैफ है कि स्ट्रेप्टोकोकस है कि क्या है, लेकिन वो ग्रो करके अगर कॉलोनी बन जाए तो कॉलोनी का कलर होगा पिंक या ट्रांसलूसेंट, तो कॉलोनी के कैरेक्टर से हम पहचान पाते हैं कि कौन सा माइक्रोब है। अगर मान लो कि एक अकेला व्यक्ति है, वो तो हो सकता है छुप छाप जाए, लेकिन उसी का अगर 1,00,000 कॉपीज बना दे तब उसका पहचान में आएगा कि नहीं ये भाई विपिन चौधरी का ही फेस है, तो उसमें ये नहीं कर सकते हो। एक इसीलिए बेस्ट वे है किसी को पहचानने का कि उसका 1000 टाइम्स कॉपीज या मल्टीपल मिलियन टाइम्स कॉपीज उसका बना दे। इस प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन बोल रहे हैं। तो पीसीआर या दूसरे टेक्निक से एम्पलीफाई कर दें या उनको क्लोन कर दें। तो सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को क्लोन किया तो देखा भाई सब एक जैसा नहीं है। जैसे हम जूम करके देखते हैं ना, कहीं अगर
डॉट डॉट लिखा हुआ, जैसे आप अगर फ्लाइट में जाओ तो एक सर्टेन हाइट के बाद नीचे सारा लैंड एक जैसा लगता है, फिर नीचे आओ तो दिखने लगता Yes. है कि बिल्डिंग है तो खेत है, और नीचे और तो और क्लैरिटी पता चलता है। यानी कि जितना आप डिटेल में स्टडी करो उतना आपको इंसाइट मिलता जाएगा। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को प्राइमरली अगर एम्पलीफाई करके देखा तो देखा दो टाइप का है, मस्कर्निक और निकोटिनिक, और फर्दर एम्पलीफाई किया कि अब जितने मस्कर्निक रिसेप्टर्स हैं, हार्ट के हैं मस्कर्निक रिसेप्टर, या लीवर के हैं, लंग्स के हैं, इंटेस्टाइन के, सारे के अलग अलग टिश्यू से मस्कर्निक रिसेप्टर लेकर के क्लोनिंग करने लगा। तो फिर लोगों ने देखा कि नहीं, मस्कर्निक रिसेप्टर्स में भी 5 अलग अलग टाइप के सब टाइप्स है। आज के डेट में 5 टाइप के मस्कर्निक रिसेप्टर्स आइडेंटिफाइड है। तो अब उनका नाम अब से 1 2 3 4 5 करके किया कि मस्कर्निक का एब्रिविएट किया M1 M2 M3 M4 एंड M5, 5 टाइप के मस्कर्निक रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे भी लोगों ने ट्राई किया कि जितने भी बॉडी में निकोटिनिक साइट्स हैं उनको भी देखें कि निकोटिनिक रिसेप्टर एक ही टाइप के हैं या अलग है। तो इसमें 2 टाइप का देखा है, N1 एंड N2। N1 को जो है NM भी बोलते हैं, निकोटिनिक मस्कुलर। ये जो है स्केलेटल मसल्स में होता है, निकोटिनिक मस्कुलर इसलिए स्केलेटल मसल्स में। और एक है N2 को बोलते हैं NN, निकोटिनिक न्यूरोनल, नर्व सेल्स में ये होते हैं। ठीक है, इसलिए ये तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में बहुत डाइवर्सिटी नहीं थी, ये बड़े लिमिटेड साइट्स में, लेकिन मस्कर्निक रिसेप्टर्स में बहुत डाइवर्सिटी थी। अब हम लोग आगे देखें कि ये निकोटिनिक और मस्कर्निक रिसेप्टर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं और कहाँ कहाँ हैं। अब इसमें देखें कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स, सॉरी मस्कर्निक रिसेप्टर्स बताया 5 टाइप्स का है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं अभी हम लोग 3 पढ़ेंगे। M4 एंड M5 जो है उतने लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ लिमिटेड टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम जानेंगे कि 5 टाइप्स के हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में अभी हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ टाइप, देखो कभी भी रिसेप्टर अगर कोई कैरेक्टराइज होता है तो कुछ एक क्राइटेरिया है। जैसे आज के डेट में तुम अगर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाओ तो कुछ क्राइटेरिया है, इलेक्शन कमीशन ऐसे ही ग्रांट नहीं कर देगा, कुछ एक सर्टेन वोटर क्लास होना चाहिए या जो भी क्राइटेरिया उनके वो फुलफिल करना होगा। तो एक रिसेप्टर सब क्लास के रूप में किसी रिसेप्टर को स्टैब्लिश होने के लिए कुछ एक क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है वो डिस्कस करें कि स्ट्रक्चरली 4 क्राइटेरिया हम लेके चल सकते हैं। पहला क्राइटेरिया जो है स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है बाकियों से अगर अलग है तो बोले कह सकते हैं नहीं भाई कि वो सबसे अलग है, इसको अलग एक क्लास हम दे सकते हैं, जैसे M1 M2 M3 M4 M5 है। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरली अगर अलग होने से नहीं होगा, और प्रूव करना होगा, फंक्शनली भी अलग होना चाहिए। स्ट्रक्चर अलग है तो उसका फंक्शन भी अलग होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है तो उस रिसेप्टर से अटैच करने वाला जो ड्रग मॉलिक्यूल है, जो एगोनिस्ट है, वो भी अलग होना चाहिए। मतलब अगर M1 और M2 दो अलग अलग अगर रिसेप्टर्स हैं, सब रिसेप्टर्स हैं, तो M1 का सेलेक्टिव एगोनिस्ट अलग होगा और M2 का सेलेक्टिव एगोनिस्ट अलग होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखो M1 का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है ऑक्सोट्रिमोरिन, एक कंपाउंड है जिसको इंजेक्ट करेगा तो सिर्फ M1 पे अटैच करेगा, M2 M3 पे नहीं करेगा। तो ऐसे ड्रग को हम बोलेंगे सेलेक्टिव एगोनिस्ट। मस्करीन जो है वो नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, वो M1 M2 M3 M4 M5 सारे से अटैच करेगा। एस्टाइल कोलिन भी है, नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, वो M1 M2 M3 M4 M5 N1 N2 सब से करेगा। तो नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव एगोनिस्ट का मतलब समझ गए आप। उसी तरीके से चौथा क्राइटेरिया है कि एक सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट भी होना चाहिए, कि अगर जैसे कि M1 का है पिरेंजेपिन है, टेलेंजेपिन है, इन कंपाउंड्स को अगर इंजेक्ट कीजिएगा तो सिर्फ M1 रिसेप्टर्स एंटागोनाइज हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो ये 4 क्राइटेरिया अगर जब डिफाइन हो जाता है तब हम बोलते हैं उसको अलग रिसेप्टर का हम स्टेटस दे देते हैं कि वो अलग रिसेप्टर। तो M1 M2 M3 ये वेल रिकॉग्नाइज्ड रिसेप्टर्स हैं, ऑल्दो M4 एंड M5 भी अलग रिसेप्टर का उनको स्टेटस दे दिया गया है, लेकिन उनका लेस डिस्ट्रीब्यूशन है,
वो लेस इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम उनके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये सारे रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ कहाँ हैं ये हमको जानना होगा, क्योंकि अगर पता चले कि जैसे अब एक हम सबसे पहले इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस ओके, तो अब M1, M2, M3 रिसेप्टर्स में सबसे पहले 1 और 3 नहीं M2 के बारे में पढ़ेंगे। M2 रिसेप्टर्स जो है वो कार्डियक रिसेप्टर्स हैं। हार्ट में सिर्फ एक ऑर्गन बॉडी का हार्ट उसमें लोकेटेड होता है और बॉडी में ना के बराबर और कहीं पाया जाता है। तो M2 के बारे में याद रहेगा कि M2 रिसेप्टर्स कहाँ होता है? हार्ट में। हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज, हार्ट के SA नोड में भी होगा, हार्ट का AV नोड। SA नोड, AV नोड का नाम सुना है ना? हेलो यस विपिन एंड श्रुति, रेस्पॉन्ड करेंगे मेरे को? यस सर। ओके, तो ये SA नोड में होगा। SA नोड को क्या बोलते हैं? एक और दूसरा नाम भी बोलते हैं। SA नोड के एक दूसरा नाम भी है, साइनोएट्रियल नोड का एक दूसरा नाम है, क्या है? पेसमेकर का नाम सुना है? यस सर, यस पेसमेकर। सर तो क्यों नहीं बता रहे हो बच्चे? मतलब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, +2 का कोई स्टूडेंट बताएगा। तो ये SA नोड और AV नोड में होगा। जितने भी ऑरिकुलर मसल्स हैं, एट्रियल मसल्स हैं, उसमें भी होगा, वेंट्रिकुलर मसल्स में भी होगा ये, ठीक है? तो कहने का मतलब हार्ट के सारे स्ट्रक्चर्स में ये M2 रिसेप्टर्स हैं। और मस्कर्निक रिसेप्टर्स, ये M2 रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट हो तो हार्ट का एक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? कौन बताएगा? ऐसे नोट सर इसका डिक्रीज होगा सर, क्यों डिक्रीज क्योंकि होगा? ये श्रुति बताएगी क्यों डिक्रीज होगा? M2 सर रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट हो तो हार्ट की एक्टिविटी क्यों घटनी चाहिए? वाई? बताओ, जो भी गलत भी बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने की प्रैक्टिस रखिए, कुछ तो आंसर कीजिए। सर हाँ बोलो। एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन के कारण राइट, एसिटाइल ठीक है। कोलिन डिक्रीज हो रहा है हाँ, तो उससे ये एसिटाइल कोलिन किस टाइप का रिसेप्टर है? कोई ये न्यूरोट्रांसमीटर है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है। कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। और आपको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बताए थे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब हम एक्टिव कंडीशन में होते हैं या रेस्ट कंडीशन में होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट कंडीशन में हाँ, होता तो है जब सर। हम रात में सोए हुए रहेंगे या फिर कंप्लीट रेस्ट में होंगे ना, तो उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मोस्ट एक्टिव होगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या बताया है आपको? कि हमारे बॉडी एनर्जी रिजर्व्स, हमारी एनर्जी को वो बचा करके सेव करता है। तो जब आप रेस्ट में रहेगा तो हार्ट बीट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो उसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये रिसेप्टर है ना, मस्कर्निक रिसेप्टर M2। तो अगर एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट घटेगा, ठीक है? अभी हम लोग का 10 मिनट का स्लॉट है, 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद एक 15-20 मिनट के लिए एक सेकंड सेशन के लिए आएंगे, तब हम लोग इस चैप्टर को आज कंप्लीट करें, ठीक है? तो फिर मैं व्हाट्सएप पे ID पासवर्ड भेजूंगा, उससे आप फिर लॉग इन होंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहे थे कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो M2 रिसेप्टर है, ये हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हार्ट के डिफरेंट टिश्यूज पे आप सोचो, ऐसे अब हार्ट की एक्टिविटी कैसे घटेगी? ऐसे नोड पे, जो ऐसे नोड का फंक्शन क्या है पेसमेकर का? इंपल्स जनरेट करना। तो ऐसे नोड में अगर डीपोलराइजेशन अगर ज्यादा हो तो इंपल्स ज्यादा जनरेट होगा। तो डीपोलराइजेशन को ब्रेक कैसे ब्लॉक कर रहा है? हाइपर पोलराइजेशन इंड्यूस करेगा। तो हाइपर पोलराइजेशन इंड्यूस होगा तो इससे क्या होगा? इंपल्स जनरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। फिर एवी नोड में है, एवी नोड में बोल रहा है कि लोअर्ड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, जो स्पीड है कंडक्शन उसको स्पीड को स्लो कर देगा, तभी तो हार्ट का पंपिंग स्लो होगा, अदरवाइज पहले से फास्ट होगा। ऑरिकल है, वेंट्रिकल में भी जो है एक्शन पोटेंशियल का जो प्रोपेगेशन रेट है सब स्लो हो जाएगा। इस परकिंजे फाइबर्स है, सब जगह स्लो होगा। तो इससे हार्ट की एक्टिविटी स्लो होगी, ठीक है? इसीलिए हम रात में जब रेस्ट में होते हैं तो हार्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, क्योंकि इस टाइप के इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा M2 रिसेप्टर जो है कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे भी है। जो एसिटाइल कोलिन का जो यहाँ पे देखो,
ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ यहाँ पे, तो ये M2 रिसेप्टर जो है हार्ट में, अगर हार्ट का टिश्यू होगा तो यहाँ पे हार्ट पे भी होगा लोकेटेड, और साथ में ये जो नर्व टर्मिनल है ना, तो नर्व टर्मिनल पे भी यहाँ पे रिसेप्टर, मस्कर्निक रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जो मस्कर्निक रिसेप्टर है M जो लिखा हुआ है, ये होगा कोलिनर्जिक, ये जो होगा M2 होगा। तो M2 रिसेप्टर जो है यहाँ पे कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स पे, जो एक्सोनल टर्मिनल जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रहा है, अगर एक्सेस रिलीज होगा, पर्पस इसका क्या है कि अगर एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस रिलीज होगा तो ये फीडबैक इनहिबिशन करेगा। तो ये अगर यहाँ पे अटैच करेगा तो ये सेंस करेगा नहीं, अब रिलीज बंद करो, अब यहाँ पे काम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये जो है डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का रिलीज को कम करेगा, ब्रेकिंग का काम करेगा, ब्रेक लगाने का काम करेगा। तो ये फंक्शंस आपने समझा कि कैसे चल रहा है। यस सर। कोलिनर्जिक नर्व Yes, sir. एंडिंग्स पे एसिटाइल कोलिन का कौन सा रिसेप्टर है? M2 है, M1 नहीं है, M3 नहीं है, M2 है। और वो क्या है? एसिटाइल कोलिन के एक्सेस रिलीज को ब्रेक करेगा, रोकेगा। और ये सारे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ये तो M2 रिसेप्टर्स थे। M2 रिसेप्टर के अलावा जो M1 रिसेप्टर्स हैं, M1 रिसेप्टर्स हैं, आपको कहाँ कहाँ होता है? देखो, ऑटोनोमिक गैंग्लिया है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया का कॉन्सेप्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया या दूसरे में नहीं होता है। और ये गैंग्लिया जो है ऑटोनोमिक सेंटर्स हैं जो कंसर्न्ड ऑर्गन की एक्टिविटी की ऑटोनोमी को गाइड करता है कि घटा बढ़ा सकता है और कुछ फ्रीडम उसको है। तो उसमें जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन, और वो जो बाइंड करेगा जिस रिसेप्टर से वो होगा M1 रिसेप्टर। इसके अलावा बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टोमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो है वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन करता है, उसमें जो रिसेप्टर होगा वो M1 रिसेप्टर है। और इसके अलावा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसमें भी एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोट्रांसमिशन करेगा। तो M1 का लोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, स्टोमक में, ठीक है। इसके अलावा जो है M1 M2 हो गया। M3 रिसेप्टर्स देखें तो बॉडी में जितने भी विसरल स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे आप डीप स्लीप में अगर कोई रेस्ट किया हुआ, सांस ले सोया हुआ है, तो क्या होगा? उसका सांस जो है, जो ब्रीदिंग है, लंबा लंबा होता है, लंबा सांस लेता है, लंबा छोड़ता है, लेकिन रेस्पिरेशन रेट 1 मिनट में जो रेस्पिरेशन रेट है वो घट जाएगा। तो विसरल स्मूथ मसल्स में जो रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कहने का मतलब है कि स्टोमक के जो ग्लैंड्स हैं, या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं, या सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, या फिर लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में M3 रिसेप्टर्स हैं। और ये अगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? उन ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो आप जब भी मस्कर्निक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा, ये सारे सिक्रीशंस ग्लैंड्स के बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स जो कैपिलरीज हैं, उसमें जो है वो M3 रिसेप्टर्स होगा और कैपिलरीज को डायलेट करेगा, उसमें जो है उसका ल्यूमेन को वाइड करेगा और ब्लड प्रेशर फॉल होगा उसकी वजह से। तो ये 3 टाइप के रिसेप्टर्स हैं, थोड़ा सा और इनको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। और एक एग्जांपल यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि M3 रिसेप्टर्स जो है, इसके बाद एंड करेंगे और सेकंड सेशन में कुछ एग्जांपल्स देंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, जितना आप समझ पाओ उतना ही। जैसे पेस्टिसाइड्स का नाम सुना है? पेस्टिसाइड, यस सर। Yes, sir. ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का नाम सुना है? यस सर। अब कोई एग्जांपल बताओ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड का। सर ये DDT ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं, ऑर्गेनोक्लोरीन है। कोई भी ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड का नाम बताइए।
ऑर्गेनोफॉस्फेट में जैसे मैलाथियोन है, पैराथियोन है, बहुत सारे मेलाथियोन इसमें फॉस्फेट है, डीएफपी है और एटसेट्रा। तो अब इनको क्या यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, उनको मारने के लिए हम पेड़ पौधों पे स्प्रे करते हैं, है ना। और उससे क्या है, वो कीड़े मर जाते हैं। तो वो कीड़े जो मरते हैं वो कैसे, क्या मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्टिसाइडल एक्शन है, इंसेक्ट्स को कैसे मारता है वो। तो इंसेक्ट्स में एक एंजाइम जो है वो एस्टाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम है। हमारे बॉडी में भी एस्टाइल कोलिनेस्टरेज है और इंसेक्ट्स के बॉडी में भी एस्टाइल कोलिनेस्टरेज है। उस एंजाइम को वो परमानेंटली इनहिबिट करता है, परमानेंटली। अब अगर हमारे बॉडी का मान लो या इंसेक्ट के बॉडी का एस्टाइल कोलिनेस्टरेज कंप्लीटली परमानेंटली फॉर लाइफ टाइम अगर इनहिबिट हो जाए, तो क्या होगा, एस्टाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। और न्यूरो ट्रांसमिशन तो हमारे बॉडी में हमेशा हो रहा है, हम आपसे बोल रहे हैं तो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है, सांस ले रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, चल फिर रहे हैं, कहीं पे भी हमारे सेल्स टिश्यूज का अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उसको नर्व स्टिमुलेशन मिल रहा है, न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है। तो वो न्यूरो ट्रांसमिशन होगा तो साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूरो ट्रांसमिशन होते ही न्यूरो ट्रांसमीटर का ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो नहीं हो पाएगा। और वो न्यूरो ट्रांसमीटर धीरे 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 एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमा होने लगेगा, इतना ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी कि वो ब्लड वहां से धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। और फिर क्या है कि ये वो न्यूरोट्रांसमीटर अपना M1, M2, M3 सारे रिसेप्टर से वो को एक्टिवेट करने लगेगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होगा। उसी में जो है अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। जैसे कि देखिएगा कि अगर कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड अगर खा ले गलती से जहर के रूप में, तो मुंह से झाग आने लगता है बहुत ज्यादा। तो वो झाग क्या है, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो बुलबुला बुलबुला जैसा झाग बनना बहुत ज्यादा होगा। तो वो पॉइजनिंग सिम्टम्स जो हैं वो सारे के सारे मस्कर्निक सिम्टम्स होंगे। हार्ट की रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, तो उसको ब्लड पंप करने में दिक्कत होगी। मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, एक सेकंड सेशन में थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे फिर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मस्कर्निक रिसेप्टर्स के बारे में कि 3 टाइप के मस्कर्निक रिसेप्टर्स हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे कि बॉडी में कहाँ कहाँ है। और एक बार फिर से रिवाइज करें कि ये तीनों में, हाँ बोलो सर। हाँ बोलिए। ये पूछना ही सर, जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो हाँ फिर ये दोनों से मस्कर्निक और निकोटिनिक में से दोनों से साथ में थोड़ा बाइंड होता है सर? दोनों से बाइंड होगा, बिल्कुल होगा, दोनों से बाइंड होता है। जहां देखो तो फिर ये सारे सारे रिसेप्टर्स, फंक्शंस। हाँ सुनने का कोशिश कीजिए। सारे फंक्शंस एक्टिवेट होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ एक क्राइटेरिया है। अब हर एक टिश्यू में बॉडी के, जैसे हार्ट में सिर्फ M2 रिसेप्टर है, M1 नहीं है, M3 नहीं है, निकोटिनिक नहीं है, तो हार्ट में सिर्फ M2 रिसेप्टर से होगा। अब ये सारे रिसेप्टर्स एक ऑर्गन में नॉर्मली एक ही टाइप का सब रिसेप्टर है। जैसे स्केलेटल मसल्स में जो है निकोटिनिक N1 रिसेप्टर है, उसमें मस्कर्निक M1, M2, M3, M4, M5 नहीं है, ना N2 रिसेप्टर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो है वो M1 रिसेप्टर है, वहां M2, M3 नहीं है। तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है कि झगड़ा या फिर ऑल 5 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सब टाइप के रिसेप्टर। हाँ, उस ऑर्गन में एस्टाइल कोलिन अगर रिलीज होगा, एक्टिवेट होगा, तो उसी एक पर्टिकुलर सब टाइप को जो अवेलेबल होगा उसी को रिलीज करेगा ना। तुम एक फ्लैट में तुमको एंट्री दे दिया और तुमको दे दिया कि तुम सारे स्विचेस को ऑन कर सकते हो और डिजिटली कोई कार्ड दे दिया, तो अभी जिस रूम में तुम अवेलेबल रहोगे उसी रूम के स्विच को ऑन करोगे ना, कि एक ही जगह से सारे को कर लोगे, वहां जाना होगा। तो जहां जहां मूव करेगा वहां वहां के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। समझ रहे हैं आप? अब क्या है कि जैसे कि वैगस नर्व है, 10th क्रैनियल नर्व है, जो आपको स्टोमक, इंटेस्टाइन, मेजॉरिटी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो अगर वैगस नर्व, 10th क्रैनियल नर्व एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले हार्ट है, हार्ट को एक्टिवेट करेगा तो हार्ट की रेट स्लो डाउन हो जाएगी। लीवर में जाएगा तो लीवर में क्या एक्टिविटी को बढ़ाएगा, GI फंक्शंस बढ़ता है। उस हिसाब से जहां जहां जो जो अवेलेबल है उस हिसाब से करेगा ये, ठीक है। तो
जितना भी M3 रिसेप्टर्स उसमें होगा, जितना भी इंटेस्टाइन में जितने मसल्स हैं, जैसे वो विसरल स्मूथ मसल इंटेस्टाइन में है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट बढ़ेगा, और उससे क्या डाइजेशन इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रेस्पिरेशन हिंडर्ड होगा, स्लो होगा उससे। उस तरीके से जहां जहां जो अवेलेबल है होगा। अब ये जो एस्टाइल कोलिन नॉर्मल डोजेस पे, नॉर्मली एक नॉर्मल डोज पे, थेरेप्यूटिक डोज पे सिर्फ मस्कर्निक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर को नहीं कर पाता है। निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए हायर डोज पे इंजेक्ट करने की जरूरत है, या हाई डोज पे होता है एक्टिवेट। तो जो नॉर्मल या लोअर डोज देंगे उसमें निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ऐसा है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में देखें। निकोटिनिक रिसेप्टर्स बताया कि नॉर्मली हायर डोज पे एक्टिवेट होगा। अगर हायर डोज पे दे दें एस्टाइल कोलिन तो निकोटिनिक मस्कर्निक दोनों एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर लोअर डोज पे दें तो सिर्फ मस्कर्निक रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, निकोटिनिक नहीं होंगे। अब निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप का बताया, N1 एंड N2। N1 को NM बोलते हैं, निकोटिनिक मस्कुलर भी बोलते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जो स्केलेटल मसल्स हैं उस पे होता है, और स्मूथ मसल स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करेगा। और इसके जो एगोनिस्ट हैं वो है निकोटीन है, PTMA है, और एंटागोनिस्ट है ट्यूबोक्यूरिन। ये ट्यूबोक्यूरिन क्या है, अगर ये एंटागोनाइज करेगा तो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को जो है वो रिलैक्स करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। तो ये सारे रिलैक्सेंट है सर। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं ये ट्यूबोक्यूरिन। ट्यूबोक्यूरिन जो है मसल रिलैक्सेंट्स है। अगर इसको इंजेक्ट कर देंगे तो मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है? फिर उसी तरीके से सेकंड जो रिसेप्टर है N2, या इसको NN भी बोलते हैं, निकोटिनिक न्यूरोनल। ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, एड्रिनल मेडुला है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ एक साइड्स में। ये सारी जगह पे न्यूरोनल साइट्स हैं, नर्व्स में ही होते हैं अवेलेबल, और न्यूरो ट्रांसमिशन को मीडिएट करेंगे। ये सारा इनका फंक्शंस है। ठीक है? अब वन बाय वन देखें फंक्शंस। अभी तक ये सारे रिसेप्टर्स जो भी आपने देखा, M1 मस्कर्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ये अगर एक्टिवेट हो, वन बाय वन देखें कि अगर हार्ट में बताया कौन सा रिसेप्टर है, हार्ट में M1 M2 में कौन सा है, M2 रिसेप्टर है। तो M2 रिसेप्टर अगर हार्ट में एक्टिवेट हो, क्या श्रुति को फोन कर लो, नहीं आएगी क्या? क्योंकि फिर तो ये टॉपिक आगे बढ़ जाएगा। हाँ, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, उसको कॉल करके ये कर लो, क्योंकि ये है। यस सर, कर रही हूँ। ओके ओके। तो तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मस्कर्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्कर्निक रिसेप्टर्स में 3 इंपॉर्टेंट सबटाइप्स को डिस्कस किया। निकोटिनिक में 2 हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है। N1 रिसेप्टर या निकोटिनिक मस्कुलर स्केलेटल मसल्स में अवेलेबल हैं, और इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसका जो एंटागोनिस्ट एक है D-ट्यूबोक्यूरिन, ये जो है मसल रिलैक्सेंट्स है। अगर ये इसका कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा तो मसल्स रिलैक्स करेंगे। बहुत ज्यादा निकोटिनिक रिसेप्टर्स में फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का स्कोप नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ स्किप करेंगे। यहाँ देखें कि जितने भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो अगर एक्टिवेट हो तो बॉडी में क्या क्या, जैसे आपने एक सवाल पूछा ना कि अगर एस्टाइल कोलिन को इंजेक्ट कर दें तो सारे मस्कर्निक और निकोटिनिक एक्टिवेट होंगे, वेरी ट्रू। तो अब किस ऑर्गन में क्या क्या होगा और क्या सिम्टम्स, लक्षण दिखेंगे, उनके बारे में देखें। तो जो एस्टाइल कोलिन के एक्शंस हैं,
अब उनको हम मस्कर्निक एक्शन और निकोटिनिक एक्शंस में हम बांट सकते हैं। अगर मस्कर्निक रिसेप्टर एक्टिवेट हो तो जो एक्शंस होंगे उनको हम मस्कर्निक एक्शंस बोल सकते हैं। सबसे पहले हार्ट में देखें तो हार्ट में जो है वो कौन सा रिसेप्टर है, M1, M2, M3 में कौन सा है, M कौन सा है श्रुति? यस सर, आवाज आ रही? क्या M1 हार्ट में कौन सा सर है? क्वेश्चन? हार्ट में कौन सा हार्ट में मस्कर्निक रिसेप्टर है, M1, M2, M3? M1। नहीं, अभी तो बताया यार, सबसे पहले बताया था M2 रिसेप्टर है ना, M2 रिसेप्टर हार्ट में है, नॉट M1। ये आपको याद हाँ रखना है। यस सर। अब हार्ट में देखें, हार्ट में SA नोड है, तो पहले AV नोड है, हिस पर्किंसजे फाइबर्स हैं, ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं। सब में क्या होगा, अगर ओवरऑल हार्ट की एक्टिविटी को स्लो करना है तो क्या होगा, पेसमेकर से जो कंडक्शन स्पीड है उसको कम करना होगा, वो होगा हाइपरपोलराइजेशन से। तो हाइपरपोलराइजेशन SA नोड में सेट होगा, उससे क्या होगा, रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। AV नोड और हिस पर्किंसजे फाइबर्स में जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो स्लो हो जाएगा। ऑरिकल्स में, ऑरिकुलर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा और रिलैक्सेशन भी स्लो होगा, तो हार्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ओके। सेकंड देखें ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में कौन सा रिसेप्टर है, देखो ढूंढ के बताओ, ब्लड वेसल्स में कौन सा है, M3 रिसेप्टर है, विसरल स्मूथ मसल्स में है, M3 और यहाँ पे ब्लड M3 वेसल्स में है, एंडोथेलियल सेल्स में जो है M3 रिसेप्टर्स हैं। जो मेजर आर्टरीज हैं ब्लड वेसल्स हैं उस पे बाहर में स्मूथ मसल का कोट है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड कैपिलरीज में है, तो ओवरऑल जो है वो वैसोडाइलेटेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। अब देखें ब्लड वेसल्स में क्या है, वैसोडाइलेटेशन मतलब कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। तो लिख रहा है फॉल इन ब्लड प्रेशर। कैसे फॉल हो रहा समझ रहे हो, क्यों फॉल हो यस रहा है सर। ब्लड प्रेशर, बीपी क्यों घट रही है? वेजोडाइलेशन की वजह से। हाँ, तो डायमीटर बढ़ेगा ना तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और वैसोडाइलेटेशन किसकी वजह से होता है, वैसोडाइलेटेशन इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय EDRF। EDRF क्या है भाई, कोई बता सकता है? क्या सर? ये जो लिखा है ना, वैसोडाइलेटेशन इज प्राइमरली मीडिएटेड थ्रू EDRF। EDRF क्या हुआ, यहाँ NO नो लिखा है, EDRF NO क्या मतलब है, कुछ बता सकते हो, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं EDRF में? EDRF का फुल फॉर्म होता है एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ये जो EDRF है ना, ये इंडोथेलियल सेल्स समझते हैं आप, इंडोथेलियल सेल्स यस सर। कहाँ पे यस होता है, कहाँ होता है इंडोथेलियल सेल्स? ब्लड ब्लड का वेसल, लाइनिंग। ब्लड वेसल्स में नहीं, ब्लड कैपिलरीज का जो लाइनिंग है ना वो इंडोथेलियल जो सेल का सबसे होता है। अंदर का लेयर जो होता है सर। हाँ, तो ब्लड वो सिंगल लेयर का होता है, तो उन सेल्स में इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, उसी सेल से ये एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये नाइट्रिक यस सर। ऑक्साइड को हम EDRF बोलते हैं, इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। रिलैक्सिंग फैक्टर क्यों है कि जिस जिस ब्लड वेसल जिस कैपिलरी से निकलेगा उस कैपिलरी को रिलैक्स करेगा, उसके डायमीटर को बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर फॉल होगा। तो एक मैकेनिज्म है ये जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है। तीसरा देखें स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में कौन सा है, M1, M2, M3? M3। M3 राइट। M3 अगर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा स्मूथ मसल्स? M3 रिसेप्टर्स अगर एक्टिवेट होंगे तो स्मूथ मसल्स में क्या चेंजेस आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा कि रिलैक्सेशन होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अब एक एक स्मूथ मसल का लेके चलते हैं। जैसे GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा GI ट्रैक्ट में?
टोन एंड मोटिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? अरे भाई, मोटिलिटी हमारे सर पेट का, बढ़ेगी। जीआई ट्रैक्ट का अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जीआई ट्रैक्ट का टोन एंड मोटिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लूज मोशंस भी हो सकते हैं, हो सकता है ना? यस सर। हाँ। यस सर। तो जीआई ट्रैक्ट का जो है टोन एंड मोटिलिटी बढ़ जाएगा। जो स्फिंक्टर्स है, स्टोमक से जो स्फिंक्टर इंटेस्टाइन में आ रहा है, वो स्फिंक्टर बीच में वो रिलैक्स हो जाएगा ताकि जो कंटेंट से फास्ट मूव करे। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो शूटिंग डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट दर्द कर सकता है, इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल होगा, जो स्टूल है या जो भी इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट में ऐसा होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में देखें, यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूरेटर्स हैं, जिससे यूरिन बाहर आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? यूरिनेशन प्रमोट होगा या यूरिनेशन ब्लॉक होगा? ब्लॉक होगा सर। यूरिनेशन प्रमोट होगा। तो अब क्या होगा कि पहला वाला अगर ये जो है M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गया तो सोचो उस पेशेंट का हाल क्या होगा। उसका डिफिकेशन बढ़ जाएगा, यूरिनेशन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है इसके बाद आप सोच लो कि उस पेशेंट का कैसा सिचुएशन हो रहा है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब होता है तो क्या हो रहा है उसके बॉडी में? एस्टाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसका डिस्ट्रॉइंग एंजाइम एस्टाइल कोलिन स्पेस जो है वो परमानेंटली इनहिबिटेड है, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो एस्टाइल कोल ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड या मैलाथियोन अगर उसका पॉइजनिंग हो जाए तो समझो कि उसका सिम्टम्स जो भी सिम्टम होगा, मान के चलो कि एस्टाइल कोलिन का वेरी हाई डोज बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, सारे के सारे मस्कार्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए। तो आप M3 रिसेप्टर पे अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि अगर जीआई ट्रैक्ट के अगर M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाए तो डिफिकेशन हो जा रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो यूरिनेशन हो रहा है। उस पेशेंट का आप कंडीशन इमेजिन कीजिए, बड़ा पैथेटिक हो जाएगा। जो अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट मैलाथियोन अगर पी ले कोई बंदा गलती से, तो उसको स्टूल का वॉइडिंग ऑफ स्टूल या फिर डिफिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। और साथ में क्या हो सकता है उसके साथ? और साथ में सांस लेने में दिक्कत होगी उसको, क्योंकि ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल्स हैं, जो ट्रैकियल स्मूथ मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी। और उसके अलावा क्या है जो जो तो इसकी वजह से एक तो है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्टूल पॉटी और उसका यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा हो गया। ये सारे टिपिकल कोलिनर्जिक सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी पॉइजनिंग हो जाए ना, ये वाला जो ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग है, तो इसी टाइप के सिम्टम्स दिखें। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई जहर खा लिया, ऑर्गेनोफॉस्फेट पी लिया, तो ऐसे लक्षण होते हैं। पैंट गंदा कर रहा है, सूसू कर रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुंह से झाग आ रहा है। झाग क्यों आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होता है? क्योंकि अब अगला देखिए 3 पॉइंट, चौथा ग्लैंड में जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवा का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा। अब सलाइवा का बहुत लार बहुत ज्यादा सिक्रीट हो और सांस लेने में जल्दी जल्दी सांस ले, तो सोचो कि वो जो हम लोग सोप में बबल नहीं बनाते हैं, उस टाइप से बबल्स बनने लगेंगे। सलाइवा जो है स्लीपी लेयर है और जल्दी जल्दी एयर वेंटिलेशन होगा तो बबल्स बनेगा, तो मुंह से झाग निकलने लगेगा। तो वो क्या है, डिस्ट्रेस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर वो सलाइवरी सिक्रेशंस अगर नहीं बढ़े तो वो झाग नहीं बनेगा। तो वो टिपिकल कोलिनर्जिक सिम्टम है कि एस्टाइल कोलिन का बॉडी में एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है या एक्सेस एक्यूमुलेशन हो रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? हेलो यस सर। श्रुति एंड विपिन, यस सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिकोलॉजी जब पढ़ेगा तो कोई भी पॉइजनिंग में जो सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे मस्कार्निक सिम्टम हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, एक एस्टाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट है, एक ड्रग है जो एस्टाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करता है, सारे मस्कार्निक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। उसका नाम क्या है? एट्रोपिन। एक ड्रग है जो M1, M2, M3, M4, M5 सारे रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। उस ड्रग का नाम है एट्रोपिन।
तो एट्रोपिन का अगर हम आईवी इंजेक्शन दे दें तो वो सारे सिम्टम्स यूं गायब हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो ये सारे मस्कार्निक रिसेप्टर्स थे। अगर आईज में देखें, आंखों में क्या होगा, अगर रात में हम ये सारे सिम्टम्स आपको इमेजिन करना हो कि भाई अगर कोई भी मस्कार्निक रिसेप्टर M1, M2, M3 अगर एक्टिवेट हो तो किसी कंसर्न्ड ऑर्गन का फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे इमेजिन करेंगे। इमेजिन कर लीजिए कि आप रात में सोए हुए हैं, डीप स्लीप में, तो उस समय अगर पूछेगा कि आई का आई बॉल, जो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा, तो प्यूपिल का अगर डायमीटर बढ़ता है तो मोर ऑफ लाइट हमारे आंखों में जाएगी। अब आप सोए हुए हो, आंख पे अगर टॉर्च को जलाए, ज्यादा रोशनी जाए, नींद तो नहीं आएगी, उस समय प्यूपिल का डायमीटर छोटा होगा। ठीक है। तो अगर मस्कार्निक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा होगा। प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के मसल्स हैं, एक है सर्कुलर मसल और एक है रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रेडियल मसल्स जो है, रेडियल मसल्स में कोई एक्टिविटी नहीं है। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मायोसिस होगा, प्यूपिल का डायमीटर छोटा होगा। यहाँ पे वर्ड है MIOSIS, मायोसिस। ठीक है। मायोसिस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो वर्ड है मायोसिस है। ठीक है, दिख रहा है ये मायोसिस मतलब प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल को मायोसिस बोलते हैं। अगर डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मिड्रिएसिस। MIDRIAS। तो ये मायोसिस और मिड्रिएसिस में ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? माइड्राइसिस। माइड्रिएसिस नहीं, मिड्रिएसिस बोलेंगे। मिड्रिएसिस बड़ा है। कितने वर्ड्स लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। इसमें 3 3 6 लेटर्स हैं। तो मायोसिस किसको बोलेंगे? जब प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो। जब प्यूपिल का डायमीटर छोटा है तो बोलेंगे मायोसिस। और जब प्यूपिल का डायमीटर अगर बड़ा हो जाए तो उसको बोलेंगे मिड्रिएसिस। मतलब लार्जर द वर्ड, ये जितना बड़ा शब्द है प्यूपिल का डायमीटर भी उतना ही ज्यादा होगा। नॉर्मली हम बच्चे क्या करते हैं, मायोसिस को मिड्रिएसिस में कर देते हैं। कि प्यूपिलरी डायमीटर अगर बड़ा हो रहा है तो मायोसिस हुआ कि मिड्रिएसिस। लार्जर द वर्ड, लार्जर इज द प्यूपिलरी डायमीटर। स्मॉलर द वर्ड, स्मॉलर इज द प्यूपिलरी डायमीटर। ठीक है, ये प्यूपिलरी डायमीटर उतना ही छोटा होगा। याद रहेगा ये? यस। मायोसिस मिड्रिएसिस में डिफरेंस आप याद रखेंगे। अब तो गलती नहीं होगी मायोसिस मिड्रिएसिस में। ठीक है, अब आगे देखें। 5 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये सारे जो आप 5 फंक्शंस है हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, स्मूथ मसल्स, मेनली स्मूथ मसल्स, जीआई ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स जो देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में देखें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको आप अगर याद रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स जो हैं, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशंस हैं तो वो भी बढ़ जाएंगे। नॉर्मली अब कहोगे कि रात में जब सोए रहते हैं हम, अच्छी नींद आती है तो जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट बढ़ा हुआ रहता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी बढ़ा हुआ रहता है। इससे डाइजेशन प्रमोट होता है, डाइजेशन ज्यादा होता है, अच्छे से होता है। एक लिमिट से अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डाइजेशन नहीं होगा, आधा पचा हुआ खाना बाहर निकलने लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़े ना तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, और अगर स्पीड स्लो हो जाए तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में भी देखें, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एक्टिवेट हो जाएंगे। और स्केलेटल मसल्स में जो है, स्केलेटल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल फास्टिकुलेशंस होंगे। जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है ना वो सारे प्रमोट होंगे।
तो ये सारे ये कोलिनर्जिक फंक्शंस जो रिसेप्टर्स हुए हैं उनके फंक्शंस हैं। और आज इतना पे क्लोज करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगले क्लास में हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे जितना भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जितना बताया था ना कि M1 का हो, M2 हो, M3 का हो, या और भी बहुत सारे हैं जो स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को, मस्कर्निक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें, उनको मस्कर्निक एगोनिस्ट बोलेंगे। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें उनको निकोटिनिक एगोनिस्ट बोलेंगे। अब क्या है कि नॉर्मली हमें निकोटिनिक एगोनिस्ट का कोई क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल यूज नहीं होता है, हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है मस्कर्निक एगोनिस्ट का। तो अगले क्लास में हम लोग जितने भी मस्कर्निक ड्रग्स हैं या पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली 1 से 2 क्लास लगेगा डिस्कशन के लिए, तो कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? विपिन, श्रुति, कुछ पूछना हो पहले का अभी तक कुछ भी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैडम ने पढ़ाया है, कुछ पूछना है? नहीं सर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैडम पढ़ा रही है, समझ में आ रहा है? एनेस्थीसिया समझ में आया सब? यस सर, आ रहा है। श्रुति, हेलो, कुछ बोल नहीं रही, सुनाई दे रहा ना मेरी बात? हैं? यस सर। ओके, तो पढ़ते रहेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, कंफ्यूजन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप, या फिर हर एक क्लास में टाइम देता हूँ, क्लास के शुरू में, आखिरी में, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्पस पढ़ने का है कि मैं जैसे भी पढ़ाऊं, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन आपको अगर समझ में आ जाता है तो पर्पस मेरा कंप्लीट हो जाता है, और नहीं समझ में आ रहा है तो सारा पर्पस जो है डिफीट हो रहा है। तो जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, क्या चीज से पढ़ रहे हो? नोट्स हैं कुछ आप लोगों के पास? बुक्स आदि वगैरह हैं कुछ, स्टडी मटेरियल? विपिन, बुक्स तो नहीं है सर, जो कॉलेज की साइट पे जो नोट्स अवेलेबल है उन्हीं से पढ़ रहे हैं सर। ओके, तो वो जो PDF मैंने भेजा है वो उसको एक्सेस कर पाते हो क्या? मोबाइल में पढ़ते हो या लैपटॉप में? सर मोबाइल में ही। अच्छा, चलो ठीक है, कोशिश करो जो बेस्ट कर सकते हो। और PPTs जो है उनको तो थॉरो होने की कोशिश करो। अगर बीच में किसी टाइप का कंफ्यूजन हो, एक रफ कॉपी में अपना सारे क्वेश्चंस लिख के रखिए, जब टाइम दे तो 1 बाय 1 अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लिया कीजिए। ठीक है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा 1 to 1 भी आप पूछ सकते हैं। तो इतना पे आज क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके करें विपिन, श्रुति, एंड करें आज का डिस्कशन की? और कुछ पूछना है? यस। हाँ ये चलो ठीक है डियर, ओके बाय। नहीं सर, नहीं पूछना है। ओके, ओके, थैंक यू।